My regards to all the eminent teachers, the dignitaries present over here. My regards to the organizers for doing a wonderful work. My congratulations to them. My best wishes and lots of love to the students out here. Well, as I was really speaking, pearls of wisdom, and I was really wondering who is she referring to. I don't know what I have really done, or whether I have done anything to deserve this honor which you all are giving me today. I'm absolutely sure I don't deserve it. So thank you, and I'm deeply embarrassed for giving me something I do not deserve. Now, but today, speaking from the core of my heart, this is a wonderful reunion for me. I am meeting so many of my lovely children here, there, everywhere. They are students in this institution. Their teachers have spoken English in this institution. They are volunteers. Now, what can I say at this moment? All that I can say, to put my thoughts in very few words. In this digital era, if we are not computer literate, then we can do nothing. So computer literacy is a must. Otherwise we cannot write a single line, otherwise we cannot go for our studies, we can do nothing. And the next step is, first is computer literacy, and the second step is computer proficiency. So literacy is just a basic requirement, and computer proficiency is desirable if you want to make it big in this competitive world. Education, I remember when I was doing my graduation, when I was a student like I still am, we had a piece, Knowledge Its Own End by Cardinal Newman. So it was a wonderful piece which said that knowledge is right, knowledge is wisdom, and knowledge is its own end. If I may pass on to Hindi, मेरी हिंदी बहुत ही खराब है, आप गुस्सा तो हो जाओगे, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए तो वो piece जो था knowledge its own end, उसका मतलब यही था कि knowledge ज्ञान को लेकर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ज्ञान मतलब it's a gateway to light, ज्ञान मतलब light, ज्ञान मतलब hope, ज्ञान मतलब life. तो ज्ञान कुछ चीज पर उससे कुछ नहीं चाहिए होता है आपको. वो ज्ञान उसी के अंदर वही आपका गोल, वही आपका डेस्टिनेशन और वही आपका फर्स्ट स्टेप है. तो नॉलेज इज इट्स ओन एंड. उसका इसका मतलब तो यही था. लेकिन आज का ये डिजिटल एज जो है, लास्ट कुछ पिछले सालों में समय के साथ तो हमें चलना ही पड़ेगा ना, वरना तो सब आगे चल जाएगा, पीछे रह जाएगा, हमारा कुछ नहीं होगा. तो वी हैव टू मूव विद द टाइम्स. तो नॉलेज का कॉन्सेप्ट बहुत ही बदल गया है. डिजिटल ईरा हैज रेवोल्यूशनाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज. आईटी, आईसीटी टूल्स, कंप्यूटर तो बहरहाल क्या कहते हैं. तो इसका ये मतलब अगर आप कंप्यूटर प्रोफेशनल ना भी हो, कुछ भी आप जनरल कोर्स में स्टडी कर रहे हो ना, तब भी आपको तो ये कुछ बेसिक नॉलेज तो आपको चाहिए. और ये जो मैं बोल रही थी नॉलेज इज ओन एंड, वो अब ऑब्सोलीट हो गया है. ओन एंड नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको लेकर आप क्या कर रहे हो. आप नॉलेज शुड बी एबल टू मेक यू सेल्फ रिलायंट. सारा जीवन किसके सामने हाथ फैलाना है, क्यों हाथ फैलाना है. We are self-respecting, dignified individuals. We will live our life with our head held high with dignity. That is our basic right, जैसे food, clothing and shelter. तो knowledge कैसे हमें help करेगा कि हमारा employment, हमारे रोजगार की तरफ कैसे हमें ले जाएगा. जो knowledge हमें दिया जा रहा है, हम नौकरी करें, हम कुछ स्टार्टअप करें, जो भी करें, तो हम खुद करें, खुद के दम पे हम अपना जीवन बिताए. जीवन तो जो है यही है, उसके बाद क्या है नहीं पता. So that employability prospects should be enhanced by the education. That is the basic end. Knowledge is not its own end. Knowledge is a means to an end. कॉन्सेप्ट बदल गया है. और इसके लिए ये जो डिजिटल ईरा में ई-रिसोर्सेज तो एकदम इंडिस्पेंसिबल है. एज अ टीचर मैं तो कंप्यूटर टीचर नहीं हूँ, मैं इंग्लिश का एक टीचर हूँ, तो क्लास में इंग्लिश पढ़ाती हूँ, लिटरेचर जो भी मुझे पता है.
इस युग में मैं क्लास में आके स्टूडेंट्स बैठे उनको मैं जो भी पढ़ा रही हूँ इंग्लिश का टेक्स्ट जो भी बोल रही हूँ, स्टूडेंट्स आजकल के बच्चे सिर्फ मैं ही नहीं, उसके बाद मेरा ये भी जिम्मा पड़ता है कि इनको बताए कि और भी रिसोर्सेज है। ये यहाँ पे ये यूट्यूब मिलता है, यूट्यूब में यहाँ पे जाओ आप, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने क्या क्लास किया है वो भी आपको पता चलेगा। तो आप इस कॉलेज में दाखिला लिए हो, यहाँ पे इंग्लिश का मैं टीचर हूँ और मेरे साथियाँ हैं, लेकिन आप कुछ और टीचर्स के क्लास में आप कर सकते हैं। सो वसुधैव कुटुंबकम इस जगह पे बैठे पूरा विश्व का नॉलेज एट फिंगरटिप्स, दिस इज द वर्ल्ड एंड इट्स सच अ नाइस थिंग टू बी इन। सो इसके लिए अब मैं तो बात करती जाऊंगी, तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, I congratulate the wonderful endeavor you are putting in, and as rural development program, Sabka Vikas, Sabka Saath, with our head held high, with holding each other's hands together, let us make confident strides into a bright, radiant future, जहाँ पे कोई पीछे नहीं रह जाएगा, क्योंकि इंडिया का ट्रेजेडी तो यही रहा है, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है, बहुत सारे लोगों के पास मिनिमम भी जो चाहिए वो भी नहीं है। तो सबका विकास, सबको लेकर कोई पीछे न रह जाए। हमारा पैंडेमिक के टाइम हमें दिखाया है ई रिसोर्सेज का यूटिलिटी क्या है, और वही पैंडेमिक की वजह